जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना। अज शनिवार वाले दिन का संगत जी, अज शनिवार का दिन है, 29 नवंबर तरीक है, टाइम है संगत जी 11:20। सो गुरु जी की कृपा के अनुसार, गुरु जी के हुक्म के अनुसार मैं अपना शुकराना सत्संग पूरे संगत परिवार नाल शेयर करन जा रही हूँ। मेरे गुरु महाराज जी बुलाणगे, जो बुलवाणगे उन्हां दी कृपा दे नाल मैं बोलांगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना संगत जी। गुरु जी कहते 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 11:20 ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੌਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੌਣੇ 6 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, 5:30 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੌਣੇ 6 ਵੱਜ ਗਏ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ 5:30 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 5:30 6 ਵਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 5:30 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਣੇ ਇੱਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 6 ਵਜੇ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੌਣੇ ਕੁ 6 ਨਿਕਲਣਾ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਈ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੁਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਖੇ ਪੌਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 45 ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਪੌਣਾ, ਮਤਲਬ ਪੌਣੇ 5, ਪੌਣੇ 6 ਜਾਂ ਪੌਣੇ 7, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਣੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ 5:30 ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 5:20 ਤੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਦਿਰ। ਤੇ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੂੰ 5:20 ਤੇ ਨਿਕਲ, ਵੀ ਆਰਤੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ, ਵੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਤੇ ਆਰਤੀ ਚ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਕਰੋ, ਵੀ ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਦਾ, 20 ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5:20 ਤੇ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 6:20, 7:20, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 11:20 ਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਈ, ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਮਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਸੱਚਾ, ਦਿਲ ਸੱਚਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੁੱਝਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਲੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ 40 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 50 ਦਰਜਨ, ਮੈਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ 6 ਕੁ ਕੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5-6 ਕੁਛ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਤੇ, 2-3, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਜਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਲੇ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਗਊ ਨੂੰ ਦੋ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4-5 ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 5 ਕੁ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕੇਲੇ, ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹੀ 30 ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਈਆ ਰੇਹੜੀ ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, 30 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, 50 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਮਿਲਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਵਾਏ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ 30 ਦੇ ਲੈਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਲੇ ਦਵਾਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜਨ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਖਵਾਣੇ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਕੇਲੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਵਾਏ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜਾਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਮੇਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 4 ਫੁਲਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਰੂਟ ਦੇਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਤੇ ਦੋ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਸੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ 5 ਜੋਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਗਾਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਨਾਲੇ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਦੀਪਕ ਮੈਂ ਜਗਾਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾਣਾ ਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਪਲ ਤੇ ਜਗਾਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੰਨਰੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ आज तुझे जो मैं देने वाला हूँ उसके बाद अपने अंदर अहंकार ना लाई, नसीब वालों को मिलता है खजाना, तेरे पति को ब्लेस कर दिया, पैसा आएगा, व्यापार च मुनाफा होएगा, बरकत होएगी, संदेश को आगे पहुंचा। हाँ जी गुरु जी, संदेश को आगे पहुंचा रही हूँ मैं, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ चिंता मत कर, तेरे घर में मेरी एंट्री होगी, अब तू परेशान नहीं रहेगा, शुक्राना कर। हाँ जी गुरु जी कर रही हैं शुक्राना। कहते सवेरे सवेरे शुक्राना, सुबह सुबह किया शुक्राना पुत्र, तेरे ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। सो बहुत बहुत शुक्राने च बहुत पावर है संगत जी। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਟਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तेरे पति दे नाल कहंदे तेरे रिश्ते दी नींव पक्की कर रहा हूँ पुत्र, अब कोई नजर दोष नहीं रहेगा, तेरे पति की तरफ से हाजिरी लगा। हाँ जी गुरु जी, मैं मेरे पति ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ, ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ,
ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਆਪਦੀ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਧਨ ਰਕਸ਼ਾ ਚਮਤਕਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ किस्मत की बंद तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना कि ये शनिवार तू विशेष चुना गया है, इस शनिवार को दिल से शुक्राना कर और संदेश आगे पहुंचा। हाँ जी गुरु जी, संदेश ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਥੋੜਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ 7 ਵਾਰੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਿਰ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆਦਿ ਕਰੋ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬੈਠੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬਰਡ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਉਹ ਨਾ ਬਰਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੋਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬਰਡ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਸਾਸਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੋਕ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ 3 ਬਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਛਣ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਆਦੀ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू अ लॉट गुरुपा।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका मैसेज आया था कि मैंने तेरे परिवार और सुहाग की उम्र बढ़ाई है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे सुहाग की रक्षा करने का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप कल बड़े ही कष्ट बता रहे थे पति अंकल पे, बेटे पे। गुरु जी, मेरे सुहाग की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हम पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी, हमारा साथ कभी मत छोड़ना। हमारे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना गुरु जी, अपनी कृपा हमारे सिर पे हमेशा बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे सुहाग की उम्र बढ़ाने का शुक्राना 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 गुरु जी। हमसे कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरु जी। मैं पति अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, मैं बेटे अंकल की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, जो आपके ही नाती नातिन है, आपके ही दामाद हैं गुरु जी। मैं आपकी बेटी प्यारी, आप बोलते हो कि मेरी प्यारी धी है, मैं अपनी तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, आपकी प्यारी धी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, मैं तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हमसे कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरु जी, अपनी कृपा हम पे यूं ही बनाए रखना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना 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 गुरु जी। आप कहते हैं कि मैं तेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटता हूँ, तू शुक्राना भी नहीं करती गुरु जी। मैं हर वक्त दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, बस रिकॉर्डिंग करने का जब टाइम मिलता है तभी कर पाती हूँ। वैसे तो मैं पूजा करते टाइम जब चलते फिरते हर टाइम आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हमसे कोई गलती हो हमें माफ़ करना, हमसे नाराज़ मत होना गुरु जी। अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना, अपनी मेहर भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। पति अंकल की हमेशा रक्षा करते रहना गुरु जी, बेटे की भी रक्षा करना गुरु जी। बेटे का पढ़ाई में मन लगाओ गुरु जी, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा गुरु जी, उसको पढ़ाई में मन लगाओ गुरु जी। उसके अभी 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम है, पढ़ाई नहीं कर रहा है गुरु जी, उसके सिर पे अपना हाथ रखो, उसको पढ़ाई में मन लगाओ गुरु जी। 12th में अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उसके सिर पे अपना हाथ रखो गुरु जी। जो भी कोई ब्लैक मैजिक वैशी वशी करना उसे हमें छुटकारा दिला दो गुरु जी। ऐसे गंदे लोगों से हमारा छुटकारा दिला दो गुरु जी। हमारे सिर पे अपना मेहर भरा हाथ हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा हम पे बनाए रखना गुरु जी। अगर शुक्राना सत्संग करने में मुझसे कोई भी गलती हो हमें माफ़ करना, हमारे माड़े कर्म बख्शना गुरु जी। अपनी कृपा हमारे सिर पे बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, वैष्णो माता का आपने मुझे कितनी बार याद दिलाया कि सुकना है जो अभी तक पूरी नहीं की है गुरु जी। हमारा उधर जाने का प्रोग्राम ही नहीं बन रहा पा रहा है गुरु जी, इतने साल हो गए हैं गुरु जी। हाथ पकड़ के अब हमें वहाँ ले जाओ गुरु जी, हाथ पकड़ के। आज मैंने शनिवार को पति अंकल से बोला था तो आज भी उनके पास टाइम नहीं था गुरु जी। हम उधर जाना चाहते हैं, सुखन पूरी नहीं होने की वजह से हमारे बहुत काम अटके हुए हैं गुरु जी। हमें सोपर में भी आपने बड़ी बार याद दिलाया है गुरु जी। अब आप ही हम पे कृपा करो, हमारा हाथ पकड़ के हमें ले जाओ गुरु जी। हमारा ये काम पूरा करवा दो गुरु जी, हमें वैष्णो माता के दर्शन करवा दो, हमें हाथ पकड़ के वहाँ ले जाओ, आप ही कर सकते हो।
हमसे कोई गलती हो हमें माफ़ करना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 29 नवंबर का शुक्राना सत्संग में करने जा रहा हूँ। आज शनिवार है और सुबह की 1:10 बज रहा है, तो मेरा शुक्राना सत्संग में शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुवार को मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आई थी, जो कि गुरुजी ने मैसेज में बोला है कि बहुत दिन से मुझे बेटी आलू का पराठा खाने को इच्छा हो रही है, तू खिला दे, मुझे बनाकर खिला दे। शुक्रवार को बनाकर खिलाना मुझे बोला गया है। और मैं तो एक्चुअली मेरा जो बेलनी है ना, जो आटे इसमें बेलती हूँ, बेलन, तो बेलन मेरा तोड़ गया है। किचन की साफ सफाई करते हुए बेलन गिर के वो था, मैं ये टाइल्स का था, जो हम बोलते हैं ना, मेटल की थी, तो ये पत्थर का था, सॉरी, तो ये गिर के टूट गया। तो मैं सोच रही हूँ कि शुक्रवार को मैं कैसे गुरुजी को खिलाऊं आलू का पराठा। सुबह की टाइम तो मैंने सोच के डिसाइड किया है कि वेजिटेबल, जो हमारी यहाँ पर वेजिटेबल रेस्टोरेंट है, हब है, वहाँ से खरीद के लेके आऊँगी, हब से। वो तो वेजिटेबल ही है, प्योर वेजिटेबल है, विदाउट एनी ओनियन एंड गार्लिक। तो मैंने ये सोचा कि मैं खरीद के लेके आऊँगी। तो सुबह तो हमारे यहाँ पर ज़ोमैटो या फिर स्विगी नहीं होती, तो मैंने इसको मेरे दोनों बेटे को मैंने स्कूल में दे के आया हूँ सुबह, और शाम को जब लेके आई हूँ दोनों बेटे को स्कूल से, तब 4 साढ़े 4 बजे, तो मैंने बड़े बेटे को बोला 2 पराठा ऑर्डर कर दे, नॉन वेज रेस्टोरेंट से, हाफ से ऑर्डर कर दे। तो मेरी बड़े बेटी ने हाफ से ऑर्डर कर दिया, आलू पराठा घर के आ गया। तो मेरे घर पे ना संगत जी, मेरी गुरुपा की स्वरूप नहीं है। और मैंने और दूसरी सत्संग में सुनी थी, जिस घर में स्वरूप नहीं होता तो शिवलिंग है मेरे घर पे, शिवलिंग में ही भोग चढ़ा सकती हूँ, भोग दे सकती हूँ। तो मैंने शिवलिंग में गुरुजी का मंत्र जाप करके मैंने आलू का पराठा भोग दे दिया शिवलिंग को, माने शिव जी तो महाशिव है ना हमारी गुरुजी। तो उसकी कुछ देर बाद मैंने भोग को लेकर चाय प्रसाद किया। तो मैं आलू का पराठा मेरी बेटी को, दोनों बच्चों को भी दिया और मैं भी खा रही थी। जब मैंने 1-2 निवाला खाई, तो ठीक इसी टाइम पे एक फोन आया। फोन उठाई तो बोला कि आपके एक फ्लिपकार्ट से आपकी एक प्रोडक्ट आई है, एक आपको लेना है। मैंने पूछा हाँ लेना तो है, कितना प्राइस है इसका? बोला 300। तो मैंने बोला ठीक है दे जाइए। तो वो प्रोडक्ट मैंने लिया। मुझे पता नहीं था ये गुरुजी का स्वरूप है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने गुरुजी का स्वरूप ऑर्डर किया था। तो परफेक्ट टाइम पे वो आया। और जब मैंने पैकेट खोल के देखा, माँ महालक्ष्मी का स्वरूप है, गुरुजी का स्वरूप नहीं है।
तो मैंने फिर से ऑर्डर किया। वो 7 दिसंबर को आएगा। यहाँ पर था जब मैंने ऑर्डर किया था। तो मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं था ये गुरुजी का स्वरूप है। मैंने मेरी बड़े बेटे को बोला जे खोल तू इसको, पैकेट को खोल। खोल के देखा, गुरुजी का स्वरूप आया है। हम सब बहुत खुशी से झूम उठे हैं। गुरुजी हल्दी कलर का चोला पहन के आया है। हाँ, जय गुरुजी बोल के मैंने गुरुजी को, छोटे से आसन है गुरुजी का घर में, तो इस आसन में ही गुरुजी को मैंने आसन में बैठा दिया गुरुजी को। और मैं सोचती रही कि गुरुजी ने थर्सडे को मुझे बोला कि फ्राइडे को तू मुझे आलू का पराठा खिलाना। तो गुरुजी ने मुझे तो नहीं पता, गुरुजी को पता है कि फ्राइडे शाम को गुरुजी हमारे घर पे आ रही है। और कैसे संजोग बनी है संगत जी, आप ही बोलिए। सुबह स्विगी जोमेटो नहीं है, तो मैंने सुबह को आलू का पराठा ऑर्डर नहीं कर पाई। शाम को किया है, 4:30-5 बजे ऑर्डर किया है। और इसी टाइम 5:30-6 में गुरुजी आए हैं हमारे घर में। तो गुरुजी इतनी दूर से आए हैं, आकर आलू का पराठा सेवा में लेगा। वो गुरुजी का प्लान था, वो मुझे नहीं पता, बाद में पता चला। तो इसके लिए गुरुजी को शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे मुझे ऐसा लगा गुरुजी की घर में आने पर कि मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली है। इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है कि मैं फील कर रही थी बहुत बड़ी अचीवमेंट मुझे मिली है, और मैं बहुत 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 खुश हूँ। तो इस अनुभव के लिए गुरुजी आपके चरणों में शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। तो आज फ्राइडे को ही सुबह में अपनी गैस ऑन कर रही थी, तो मेरे हाथ थोड़ा-सा कट गई थी, तो खून भी निकला। तो ये गुरुपा जाने क्या, गुरुपा को तो सब ही दे दिया। आज सैटरडे सुबह, सुबह नहीं 1 बजे, जब मैं पूजा पाठन करके मैं किचन में आया हूँ, किचन की काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे डोबरमैन है जो कि मेरे पेट है। तो ये ना बहुत भौंकने लगी है ऊपर उठ के। तो मैंने गया, जाके देखा एक सन्यासी बाबा हमारी जो घर है, घर के सामने कुत्ते के लिए, वो हमारी जैक के लिए आ नहीं सकते हमारी दरवाजे पर, वहां से ही बोला। तो मैंने देखा वो भौंक रहा है जैक, तो मैंने गया सामने, जाके देखा एक सन्यासी बाबा। तो मैंने जैक को घर में लेके बंद कर दिया। तो सन्यासी बाबा को बोला, बाबा आइए, आप आइए। बाबा आए हैं, तो हमारी बरामदा में बाबा को बैठने के लिए बोला। बाबा खुश हो गया कि आप अंदर आने के लिए बोल रही हो, बहुत अच्छा बोल के बैठे हैं। तो मैंने बोला कि बाबा क्या सेवा करूं आपके। बोले कुछ सेवा नहीं करिएगा जीजी, कुछ सेवा नहीं करिएगा जीजी, एक गिलास पानी पिला दीजिए, वो ही बड़ा है, बहुत बढ़िया होगा। तो मैंने ठंडे पानी एक गिलास बाबा जी को पिला दिया, क्योंकि अभी तो ठंडे का दिन है ना। वो फ्रिज से नहीं पिलाया, हम तो डाम के पानी पीते हैं। वो जो डिसेंसी है, इसलिए ये डाम, तो इससे मैंने एक गिलास पानी पिला के, बाबा जी ने बहुत बातें की मुझसे, और मुझे एक 2 मुखी रुद्राक्ष भी दिया है। बोला कि ये शिव पार्वती का रुद्राक्ष है, मैं आपको देती हूँ, आप इसको अपने आसन पे रखना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल फ्राइडे को बाबा ने आया है, और इससे पहले कोई भी सन्यासी बाबा की इस घर पे नहीं आई है। इससे पहले कोई भी सन्यासी इस घर पे नहीं आई है। बाबा ने फ्राइडे शाम को आई है, और सैटरडे दोपहर को ही एक सन्यासी बाबा ने हमारे यहाँ पर पधारे हैं। तो इसके लिए बाबा को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही जानो आप किसको भेजे हैं, किसके मन में आपने ये बात रखी है कि जाओ उनके घर जाइए, उनकी घर को ब्लेस कीजिए। मुझे ना मैंने सुनी थी, कोई भी साधु सन्यासी अगर किसी गृहस्थ की घर में आए तो इस गृहस्थ की आने वाले जो संकट है, आपदा है, विपदा है, वो लेकर जाते हैं। जाते समय वो आपदा विपदा रोग जो संकट है वो सब लेके जाते हैं। तो गुरुजी का वो रचना है, तो इसके लिए गुरुपा को मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का चरणों में हूँ, गुरुजी देखे, गुरुजी का पालने में हूँ, गुरुजी लालन पालन करिएगा। आप ही देखिएगा, बीमारी दूर करिएगा इस परिवार के, और सभी संगत के परिवार को आप ही रक्षा करिए। और मैं जब भी शुक्राना सत्संग करती हूँ, जिस चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर होता है, मैं इस चैनल का जो ऑनर है, जो संगत जी है, मैं उनको भी गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, उनका परिवार भी बहुत हंसी खुशी रहे, उनका परिवार से भी बीमारी दुख दूर हो, जैसे हम सब संगत का शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, वैसे उनका हर दिन अच्छे काटे गुरुजी का कृपा से। तो ये बोल के मैं अपनी शुक्राना सत्संग यहाँ पर ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और नए सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जी सदा साई ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज जी मुझसे जो बोल पाएंगे वही बोलूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर करें उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मेरा सत्संग शेयर करें, उनकी झोलियाँ हमेशा खुशियों से भरना। शुक्राना शुक्राना, इतनी देरी ढेरों ब्लेसिंग देने का शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा मनोकामना पूरा कर देने का शुक्राना शुक्राना। जो दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो आगे दोगे उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले हर क्षण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते हैं, मुझसे गलती माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पाके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाकी में बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सवेरे सवेरे मैं जब बाहर निकली थी घर से, तो एक बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली मेरे आंखों के सामने बिल्कुल नजदीक से उड़ के गई। संगत जी, गुरु पाद तितली के रूप में तो मुझे दर्शन देते रहते हैं, लेकिन आज बहुत पास से निकल के गए। गुरुपा, आप मुझे ब्लेस करने आए थे, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मैं अपने 1000 रुपए कहीं रख के भूल गई थी। उल्टे हाथ में पकड़ी थी, तो मैंने अलमारी में रखा या पलंग के नीचे रख दिया, ये मुझे याद नहीं आया। लेकिन मैं अच्छे से रखी थी, लेकिन वो जगह मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे रखी। जब मुझे उन पैसों की ज़रूरत हुई तब मैंने सब जगह देखा, याद ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने जय गुरुजी, वो पैसे मुझे मिल जाए ऐसा मैंने कहा, और मुझे याद आ गया। मैंने अलमारी के दराज में एक डिब्बे के अंदर रख दिया था। संगत जी, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मुझे वो रुपए मिल गए, नहीं तो मैं मन ही मन सोचती रहती कि मैंने वो पैसे कहाँ रखे। ये आपकी ही कृपा है कि मुझे आपने ही बताया और मुझे वो पैसे मिल गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैंने कल एक सत्संग सुना, उसमें एक संगत जी बता रही थी कि उन्होंने घर में एक मरा हुआ चूहा देखा और गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे घर में जो नकारात्मक शक्ति थी वो दूर हो गया। संगत जी, आज मैंने भी अपने घर में एक मरा हुआ चूहा देखा और मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला। गुरु पाने मेरे भी घर ऊपर जो नकारात्मक शक्ति थी या जो भी कष्ट थे गुरुपा ने दूर किए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम जो हाउसवाइफ रहते हैं वो हमेशा घर में ही रहते हैं, खाना बनाओ, घर का काम करो, ऐसे ही बिजी रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों मुझे कहीं बाहर जाने का मन हो रहा था, लेकिन कहीं जाने का मौका नहीं मिला था। लेकिन बुधवार और गुरुवार को गुरु पा की कृपा से मुझे बाहर निकलने का मौका मिला। हम लोग अपने रिश्तेदार के घर ही गए थे, थोड़ा अच्छा लगा, मूड अच्छा फ्रेश हुआ। संगत जी, गुरु पा ये आपकी ही कृपा है जिसके कारण मुझे मेरे हस्बैंड ने जानने के लिए कहा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नहीं तो वो हमेशा मना ही करते या फिर कुछ बोल दे ही देते थे, जिससे मेरा मन खराब हो जाता था। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत एंजल नंबर से भी ब्लेसिंग दी है, इसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में बताया था कि मेरा भाई जॉब के लिए परीक्षा दे रहा है। एक की 2 परीक्षा हुआ है, अब बचा भी था, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है संगत जी। संगत जी, कल मेरा भाई फिर एक पेपर देने के लिए बाहर गया था और उसने बताया कि वो पास हो गया। संगत जी, मैंने उससे कहा कि कैसे इतना जल्दी रिजल्ट बता दिए? तो उसने कहा कि नहीं तुरंत बता दे हैं, लेकिन जो पास है उनका एक बार फिर से टेस्ट होगा। शायद दिसंबर या जनवरी में फिर से टेस्ट होगा। गुरु पाप की कृपा से उसने 2 या 3 टेस्ट पास कर लिए हैं। एक आखिरी और टेस्ट बचा है, तो प्लीज़ गुरु पाप उसके अंग संग रहिएगा और उसको भी वो अच्छे से पास कर ले। कल उसने टेस्ट पास कर लिया, ये आपकी कृपा से ही हुआ गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वाला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन शनिवार है और अभी शाम के 4:51 हो रहे हैं। तारीख है 29/11/2025 और जो गुरुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी। गुरुपा आज्ञा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, बेटा कल महीने का आखिरी दिन है और अगर तू चाहती है कि कल तेरे दुख दर्द का भी आखिरी दिन हो, उसके लिए तुझे इस सत्संग का नया महीना शुरू होने से पहले सुनना होगा। बस कल तक का वक्त है, जल्दी सुन, तेरे पास सिर्फ कल तक का समय है। और हेडिंग नीचे में लिखा हुआ था, उसके बाद सर सत्संग सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आप मुझे सर मत बोलिए, आप हमारे गुरु पिता हैं, परम पिता परमेश्वर है। और संगत जी, शायद मैं गुरुपा का बात थोड़ा थोड़ा नहीं सुनती हूँ, इसके लिए गुरुपा से बोल रहे हैं। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो। और आपका तहे दिल से शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना है मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने बेटे अंकल की तरफ से भी आप गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटी आंटी की तरफ से भी शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका गुरुपा करोड़ों बार शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है मालिक। और संगत जी, गुरुपा का मेरा ये सत्संग है कि मेरे अंकल जी हमेशा बात बात पे झगड़ा करते थे। आजकल बात सुनते हैं, कुछ भी बोलूँ तो उतना जल्दी जवाब नहीं देते हैं, नहीं तो वो मौका ढूंढते रहते थे कि कहाँ पे मेरा बेइज्जती करे। हर जगह जहाँ पे बहुत भीड़ हो, जहाँ पे लोग सुने, उस जगह पे बहुत इतना कलेश करते थे कि
सुनने वाले का कान फट जाए। और अगर कुछ समझाते थे तो और चीखने चिल्लाने लगते थे। तो गुरुपा की वजह से ही इतना घर में शांति रहती है, क्योंकि गुरुपा ने सब कुछ धीरे धीरे सही कर दिया है और मेरे पति अंकल का दिमाग को भी सही करना शुरू कर दिए हैं। उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना है मालिक। शुक्राना शुक्राना करोड़ों बार शुक्राना है। और बेटा अंकल के लिए डेली मैसेज आता है कि बेटा के ऊपर कष्ट है, संकट है। तो संगत जी और एक आंटी जी का एक मैसेज और भी आया था, जिसमें आंटी जी बता रही थी कि उसके पास भी ऐसे ही सत्संग आ रहे थे, तो वो सुनती ज़रूर थी। तो एक दिन कहीं पे माता जी का चौकी लगता है, वहीं पे गए थे माँ बेटा दोनों। और वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, फिर सब कुछ उन लोग नाचे गाए, सब कुछ किए। फिर रात को घर आए, रात को 9 बजे। और फिर 10 बजे पता चला कि जिसके घर में गए थे उस संगत आंटी का बेटे का तबीयत खराब हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और इसके बाद आंटी जी सिर्फ उसी के बारे में सोच रही थी। फिर धीरे धीरे 1-1:30 बजे रात को फिर उसके जो बेटा थे उनको भी उल्टी होना शुरू हुआ, लगातार उल्टी हो रहा था और हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो वहाँ पे सब जांच वाँच हुआ, तो उसमें पता चला कि उसके मतलब बीमारी पनप रही थी, जानलेवा बीमारी। और आंटी जी को ऐसे पता चला और फिर शुरुआत हो रही थी। तो छोटे में ही गुरुपा ने उसके संगत जी के जो बेटे अंकल थे उसका कष्ट काटा। और वो 9 दिन तक हॉस्पिटल में थे। 9वें दिन फिर आंटी जी ने गुरुपा से अरदास की और फिर 10वें दिन उनके बेटे का हॉस्पिटल से छुट्टी हो गया। तो उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना है कि गुरुपा आप सत्संग सुनवा सुना के ही बड़े बड़े संकट को छोटे में कटवाते हैं। उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और गुरुपा आप जानते हैं कि दोनों बच्चे बाहर में रहते हैं, बेटी भी और बेटा भी। तो सब कुछ आप ही को देखना, आप ही को संभालना। और हमारे लिए तो सिर्फ आप ही हैं ना गुरु पिताजी, हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। अंकल जी भी सिर्फ नाम के हैं, वो अपना ही बीमारी के चलते परेशान रहते हैं। और कुछ ठीक भी थे तो नहीं करते थे, अभी भी नहीं लगता वो कुछ करने वाले हैं। हमेशा बच्चों से इनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं बना पाए हैं, बच्चों से बात भी नहीं करते हैं और उन लोग की परेशानी को समझते भी नहीं है। तो गुरुपा सब कुछ आप ही को देना है, देखना है। और कोई भी ऐसी बीमारी हम लोग को ना हो गुरुपा, हमें निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। और आपके श्री चरणों में हमेशा मुझे भी और बच्चों को भी अनंत काल तक लगा के रखिएगा गुरुपा, हाथ मत छोड़िएगा। और गुरुपा आपका तहे दिल से फिर से शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। और जो आंटी अंकल है उन दोनों का भी ढेर सारा शुक्राना है कि हमारा सत्संग शेयर कर देती है। और सभी संगत आंटी और अंकल का भी शुक्राना है जो मेरा सत्संग सुनती है। और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद और ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, सभी को निरोगी काया ब्लेस कीजिएगा। और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग संध्या वेले का 6:21 और आज की तारीख है 29 नवंबर 2025 शनिवार। शुक्रगुजार हूँ मैं गुरु जी का, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। हर दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी, हर पल रहने का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हाथ पाँव सलामत है उसका शुक्राना, चल फिर पा रहे हैं उसका भी शुक्राना, अच्छा कपड़े पहनने मिल रहे हैं उसका भी शुक्राना, खाना पानी देने का शुक्राना, रहने के लिए छत देने का शुक्राना, फ़ैन लाइट कूलर फ्रिज जो कुछ भी अभी मेरे पास है जो दिया उसका शुक्राना, व्हीकल्स का शुक्राना, एनिमल्स का शुक्राना, नेचर का शुक्राना, ब्रह्मांड का शुक्राना, सारे देवी देवता का शुक्राना, हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना, हर पल रक्षा करने का शुक्राना, हर नेगेटिविटी को भस्म करने का शुक्राना, हमें मार्गदर्शन करने का शुक्राना, हमें आपके श्री चरण मिले उसका शुक्राना, पूजा पाठ करते हैं आपकी उसका शुक्राना, सारे देवी देवता का शुक्राना। थैंक यू माँ काली, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच नीमकोली बाबा, हनुमान दादा, सारे देवी देवता की जय हो जय हो।
मुझे आपसे जोड़ने के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच। और सबका मंगल हो, सब सही हो, जो भी नेगेटिविटी हो उसे भस्म कर दीजिए और हमें मार्गदर्शन करते रहिए, हमें सही दिशा दिखाते रहिए गुरु जी। जो भी नज़र लगी हो उसे भी नज़र उतार दीजिए गुरु जी, और इसकी जड़ से निकालिए और बरकतें दीजिए, सुख शांति बनी रहे। ये मेरा अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिए उसका भी शुक्राना, जो आपने देखे भी छीने उसका भी शुक्राना, हर दुर्घटना से बचाने का शुक्राना, हर कष्टों से मुक्त करने का शुक्राना, और मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, और हर पल का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शक्ति सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना 29 तारीख का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगती हूँ, कल मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब हम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि ना, कल मैं सुबह जब सोकर उठी ना, तो मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पर चूँकि मेरे हस्बैंड को और मुझे हमें फ्लैट देखने के लिए जाना था, क्योंकि अभी हम किराए के घर में रह रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम खुद का घर ले लें। बाकी गुरुपा भी बोल रहे हैं कि बेटा तुझे ब्लेस करूँगा नया घर, तो है ना क्या बोलते, तो फिर ना क्या बोलते हमने, तो मैंने फिर जल्दी से नहाया। हालांकि संगत जी मुझे बहुत सर्दी हो रखी थी, पर फिर भी गुरुपा ने, मतलब मैं जब मैं उठी थी ना, तब तो मुझे बहुत तेज सर्दी थी। फिर जब मैंने कहा कि अगर गुरुपा ने आदेश आया है कि हाँ फ्लैट मुझे ब्लेस कर रहे हैं, तो मुझे भी तो उसके लिए तैयारी करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैं इस एक्साइटमेंट में, और मैंने गुरुपा से बोला तो गुरुपा ने देख लिया। हालांकि मुझे अरदास भी नहीं करना पड़ी, गुरुपा समझ गए थे कि ये काम में एक बार लगती तो इसको होश ही नहीं रहता है क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी सर्दी है ना कब दिन में, तो मतलब मुझे आराम लग गया। फिर मैंने नहाया, फिर मैं रेडी हुई, और फिर ना मेरे पास ना परसों रात में एक मैसेज आया था कि पुत्र तुझे कहीं ना भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ तुझे मिलना है वो तेरे पास खुद ब खुद आ जाएगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। तो मेरी जो चीज़ है वो मुझ तक आप खुद ही पहुंचा देंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो मुझे लगा कि पता नहीं यार मैं फ्लैट देखने जाऊँ नहीं जाऊँ। तो फिर मैंने ना गुरुपा के तस्वीर के आगे बोला कि देखिए गुरुपा, यदि आप चाहते हैं कि मैं फ्लैट देखने जाऊँ, तो आज राघव के पापा को ना आधा एक घंटे के लिए छुट्टी मिल जाएगी ऑफिस से। और यदि आप चाहते हैं कि मुझे वो नहीं जाना है कहीं पर, घर बैठे मेरे सारे काम होंगे, तो फिर उनको आप ऑफिस से छुट्टी मत दिलाइएगा, बस वो 10-15 मिनट के लिए लंच के लिए आ जाए। तो फिर ना उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो संगत जी उन्होंने कहा कि हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, मैं आ रहा हूँ। तो फिर वो ग्रुपा उसके बाद ना फिर वो आए, फिर हम गए। हमने 2-3 जगह फ्लैट का मतलब मालूम करा, चूँकि वो ऑफिस से आए थे उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप संडे के दिन आ जाइएगा, हम संडे मिल के अच्छे से बात कर लेंगे। तो अब बाकी मैंने सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया, गुरुपा को देखना है, तो उस दिन के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम गए वहाँ पे, हमने आसानी से सब कुछ देख लिया, और ना गुरुपा ने एक हिंट भी दी थी कि यहाँ पे इस नाम का बंदा तेरी मदद करेगा। तो वो तो नहीं मिले गुरुपा, हो सकता है शायद हम जब नेक्स्ट टाइम जाए तब वो मिले। बाकी सब कुछ करना गुरु ने है, गुरु जी ने है, सब कुछ देखना गुरु जी ने है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा। धीरे धीरे एटलीस्ट आपने मेरे पति हस्बैंड के अंकल में ये बात तो डाली कि हाँ हमें मकान लेना है, फ्लैट लेना है, कुछ आगे के लिए सोचना है, वरना वो तो कुछ सोच भी नहीं रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ना दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है कि ना, कल कल शाम को मैं अपनी क्लासेस ले रही थी, चूँकि मैं कल साइंस में हूँ, तो मैं अपनी क्लास कंटिन्यू कर रही थी। और ना कल ही हमारी कॉलोनी में हमारे नीचे सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर है, तो उनकी स्थापना के ना 5 साल मतलब पूरे हो गए थे, 5वां ईयर था ये। तो ना भजन संध्या ठीक 9 बजे, 9 बज के मतलब 9 बजने में कुछ समय था तभी शुरू हो गई थी।
तो मैं ना 8:45 पे गई हुई थी, मतलब थोड़ा समय बाद पहले, और ना मैं सिर्फ 10-15 मिनट बैठ के आई। तो चूँकि मेरी क्लास 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, तो मुझे लगा कि यार अब मैं कैसे मतलब भजन संध्या करूँगी, क्लास लेना बहुत ज़रूरी था, चूँकि डाउट्स भी क्लियर करना थे मैडम से। तो फिर ना जब मुझे पता था कि क्लास तो 10:30 बजे ख़त्म होगी, फिर ना मैंने मनी मन गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा प्लीज़ कुछ भी हो, आज ना ये क्लास जल्दी से ख़त्म हो जाए। 10:30 या ज़्यादा से कभी कभी मैडम 11 भी बज जाती थी। तो जैसे ही मतलब 10:30 हुआ, 23 हुआ, तो मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा मुझे भजन में जाना है, मुझे महादेव के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैडम ने खुद ही बोल दिया 10:30 पे कि इतना ही हम करें। फिर एक दो लोगों के डांट हुए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10:40 का टाइम हो गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस पे शुक्राना गुरुपा, बिलियंस पे शुक्राना गुरुपा। ये आपकी रहमत थी जो मतलब मैडम ने ना ये सेशन को क्लोज कर दिया, वरना आज कल का जो हमारा सेशन हुआ था ना क्लास का, उसमें डाउट्स ज़्यादा थे। तो मुझे लग रहा था मैडम आसानी से क्लास 11 बजे तक खींचेंगे, क्योंकि जब हमने 9 बजे से डाउट्स करना स्टार्ट किए, तो हम लोग को 9:45 तो डाउट्स क्लियर करने में लग गया। तो फिर मैम ने कहा कि आगे का कोर्स भी, कंटेंट भी क्लियर करना है, उसे भी आगे बढ़ाना है। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैम किसी भी हालत में हम लोग को 11 बजे से छोड़ेंगी। बट शुक्राना गुरुपा, आपने ना मुझे जैसे ही मेरे क्लास का शेड्यूल ख़त्म हुआ, मैं तुरंत भजन में गई, और फिर मैं रात में 12:30 बजे बहुत सब 12 तक एंजॉय करके बहुत अच्छे से आई। और फिर मैं आई, फिर मैंने अपने बेटे को देखा, पति अंकल को देखा। मेरा बेटा उस टाइम जाग रहा हुआ था। गुरुपा ने इतनी कृपा करी कि मतलब मुझे अच्छे से भजन करने, मतलब मेरे पति अंकल ने भी मुझे परेशान नहीं करा कि तुम बच्चे को संभाल लो, तो बच्चा परेशान कर रहा है। और मैं जब आई तो देखा तो दोनों बैठे हुए थे, खेल रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मतलब आपने मुझे ना इतने अच्छे से भजन करा दिए। और ना कल भजन में गुरुपा मैंने आपको भी बहुत याद किया, राधा रानी को भी बहुत याद किया, और ना मेरी आंखें भी नम हो गई थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप छोटी से छोटी चीज़ में हर जगह अवेलेबल होते हैं। और ना गुरुपा बस अब मुझे शक्ति दो, कि आपने बोला है कि आपको तीखे वाले आलू आलू के पराठे खिलाना, तो बस अब मैं आपको ना तीखे वाले आलू के पराठे खिला पाऊँ गुरुपा, बस यही अपनी बच्ची को शक्ति दो। और ना आपने मुझे बहुत सारे उपाय भी बता रहे गुरुपा, मुझे शक्ति दो कि मैं ना सारे काम अच्छे से कर सकूँ, पढ़ाई भी, घर का काम भी, और आपके सत्संग भी कंटिन्यू सुन सकूँ गुरुपा। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 दिन हो जाते हैं मैं आपका सत्संग नहीं सुन पाती गुरुपा। मैं ना मतलब सब चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ तबीयत के मारे गुरुपा। तो शुक्राना गुरुपा, चूँकि हमारा शुक्राना सत्संग है, तो मैं बताऊँगी नहीं अरदास का। तो हम अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करेंगे। और सबके जीवन में खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुपा, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और है ना जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, अंकल जी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते। मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं गुरुपा, मेरा जो भी सत्संग सुन रहा है, आपकी जितनी भी संगत है, सर्वदा भला हो गुरुपा, सारी संगत अच्छे से हंसती खेलती रहे, किसी के घर में किसी चीज़ की कमी ना हो, बस सब खुश रहें। जय जय गुरु जी करे, वाह वाह गुरु जी करे, धन धन गुरु जी करे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा। और ना मेरा एक शुक्राना सत्संग और है जो मैं आज शेयर कर देती हूँ। मैंने अपने पति अंकल से बहुत दिनों से बात करने का सोच रही थी, क्योंकि अभी मेरी ना जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसके घर में परेशानियाँ चल रही हैं, और जिसका कारण वो खुद भी है। और उसका एक छोटा सा रीज़न मैं हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि उन लोग को है ना थोड़ा सा मतलब ये रियलाइज़ कराना ज़रूरी था कि यदि आप किसी को बार बार टॉर्चर करते रहोगे, तो वो एक बार आपको जवाब देगा, तो वही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है टॉर्चर करना। तो ना गुरुपा, मेरे पति अंकल इस चक्कर में बहुत परेशान थे, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे हस्बैंड को समझती नहीं है। और जब देखो जब ना डाउनफॉल करती रहती है उनके साथ, उन्हें नीचा दिखाती रहती है, उनको उनको ना बहुत गिल्टी फील कराती है। मतलब कौन माँ अपने बेटे के साथ ऐसा करता है, पर जब देखो जब वो उनको यही फील कराती है कि तूने अच्छा नहीं करा, तूने ये नहीं करा। तो मैं इस चीज़ को लेकर ना मैं अपने पति अंकल से बात करना चाहती थी। तो जब मैं रात में भजन संध्या करके आई, तो उसके बाद फिर मेरे बेटे को मैंने सुला दिया। और ना 2 बजे करीब मेरे हस्बैंड बहुत थकी हुई हालत में, बहुत सैड लग रहे थे, तो फिर मैंने उनसे पूछा, बैठ के बात की कि आपको क्या परेशानी है। तो गुरुपा मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनसे कैसे बोलूँगी, वो क्या रिएक्ट करेंगे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मेरी सारी बातें सुनी। और फिर मैंने उनको बताया कि कैसे आपने मुझे, जब आपने मुझे वहाँ ये अपने बनारस बुलाया था, वहाँ आपने मुझे दर्शन दिए थे पंडित जी के रूप में, और आपने ही मुझे समझाया था कि मैं सभी को निभा के चलूँगी। आपने मुझे शक्ति दी थी, रुद्राक्ष दिया था, बहुत सारी चीज़ें ब्लेस की थी आपने मुझे। मैं जानती हूँ गुरुपा, वो पंडित के रूप में आप ही थे, क्योंकि मेरे अगर परिस्थिति किसी को पता है तो वो आप है, आपके अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता गुरुपा। तो मैंने उनसे ढेर सारी बातें शेयर करी।
फिर उनको समझाया, तब उनको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद फिर मैंने उनको उनके पैर दबाए, फिर वो आराम से सोए गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप छोटी छोटी चीज़ों को भी इतने अच्छे से करा देते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी। और ना गुरुपा, आज के लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, आज मैंने सिर्फ आपको चाय प्रसाद का भोग लगाया, खाना नहीं खिला पाई गुरुपा। मुझे ना अच्छा नहीं लगता गुरुपा, आज मुझे बहुत सर्दी हो रखी है, तो मैंने नहाया नहीं, सिर्फ कपड़े वगैरह चेंज करके आपके सामने आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करें, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है गुरुपा। यदि मैं कुछ भी गलत एक्टिविटी करती हूँ तो उसका हार्म मेरे बच्चे को होगा, क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ, कोई साथ नहीं है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, आज आपको कुछ भी नहीं खिलाया आपकी बेटी ने। और ना क्या बोलते हैं, अभी आपके जमाई आएंगे, फिर वही आपको खाना खिलाएंगे गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल के लिए शुक्राना गुरुपा, हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। और ना गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग और ये कि गुरुपा का आज ही सुबह ना मेरे पास 2-3 मैसेज आए कि पुत्र कोई बहुत बड़ा कष्ट था, मैंने काट दिया, चल शुक्राना कर दे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। एक गुरुपा का मैसेज आया था, तेरे रिश्ते, तेरी स्वास्थ्य, तेरा हेल्थ, तेरे सब कुछ मैंने संभाल लिया, अब शुक्राना भी मैं करूँ क्या? तो आपने सारी चीज़ों को संभाल रखा है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसमें शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा, आपको ये भी पता चल गया कि मैं कल भजन में रोई थी, तो कल आपने मुझे आज मैसेज भी किया, पुत्र कल तू रोई थी, किस नाल रोई थी, चिंता ना कर, मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तो मेरे को इतना समझने के लिए, इतना प्यार देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस में शुक्राना गुरुपा, बिलियंस में शुक्राना गुरुपा। और ना कृपा कह रहे हैं कि तू बस तैयारी कर ले, सब कुछ बहुत चंगा, बहुत फट्टा होने वाला है, और विदेश की तैयारी कर ले, अपना तेरा नाम पता सब बदलने वाला है। तो गुरुपा, आप तो क्या सरप्राइज है तो मुझे नहीं पता, पर गुरुपा आप ये मैसेज भी कर रहे हो कि बेटा तेरे माड़े कर्म बीच में आ रहे हैं। तो आज मैं हर उस संगत से, पता नहीं हो सकता वो संगत जी भी हो, मेरे परिवार के लोग हो, मेरे पड़ोसी हो, तो मैंने जिस किसी भी जन्म में, जिस पल भी, जिस घड़ी में जिस किसी का दिल दुखाया हो, मैं उससे अपनी आत्मा समेत माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। देखिए, मैं नहीं जानती मैंने इस जन्म में आपका बुरा किया है उस जन्म में, पर मैं दिल से हर एक उस इंसान से जिसका मेरी वजह से दिल दुखा है, मैं उससे दिल से माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानती हूँ, मैंने जानती हूँ कि इतना आसान नहीं होता, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैंने आपके साथ क्या गलत किया है, भुगता तो आपने होगा। तो मैं हर उस संगत से, गुरु जी से, सबसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। और ना अभी शुक्राना सत्संग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अब मैं शुक्राना सेक्शन अपना यही समाप्त करती हूँ, बाकी मैं अपना शुक्राना दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। तब तक मैं नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ और यही अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। संगत जी कृपा, यदि शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।